Good evening, students. Today we'll complete question number 2. Vinayaka's trial balance as on 31st March 2004 is as follows. Opening stock of raw material consumed. तुम लोग को बताना है कि कहाँ पे आएगा. Opening stock of WIP. जल्दी बताओ. Opening stock of WIP कहाँ पे आएगा? जिनल पृथ्वी. Opening stock of WIP. Vikram. Come on fast. Answer जल्दी जल्दी. Opening raw material consumed में नहीं. Opening stock of WIP manufacturing account debit side. Opening stock of finished goods. Opening stock of finished goods कहाँ पे आएगा? Yes, trading account credit side. Trading account debit side. Opening stock of finished goods trading account debit side. साक्षी थोड़ा टाइम लगे समझने में because ये first lecture, तो don't take tension. Okay. तो raw material, opening stock of raw material consumed, opening stock of WIP, manufacturing debit, and opening stock of finished goods, trading account debit side. Purchase. बोलते जाओ फटाफट बोलते जाओ, टाइम नहीं. Purchase, yes, raw material consumed. Building, plant and machinery, and furniture and trademark sub assets. Building, plant and machinery, furniture, trademark. Okay. Balance sheet, asset side. ठीक है. Now wages. Wages कहाँ पे आएगा? Wages, yes, manufacturing account debit side. All the factory expenses are debited to manufacturing account. Factory taxes, yes, manufacturing debit. Motive power, manufacturing debit. सही जवाब. Factory insurance, manufacturing debit. सही जवाब. Salary to office staff, कहाँ पे आएगा? जल्दी बताओ. Yes, profit and loss account debit side. कहाँ पे आएगा? Profit and loss account debit side. सही है. Next, office rent. Then profit and loss account debit side. Carriage inward. सोच समझ के बोला carriage inward. गलती मत करना, बहुत बार नहीं किया. Carriage inward. Yes, पृथ्वी का आंसर सही जवाब. Raw material consumed में आएगा. Expenses incidental to purchase of raw material is debited to raw material consumed. Okay. Now printing and stationery. Yes, Gina, right answer. Profit and loss account debit side. Bank charges. Yes, Shivangi, सही आंसर है. Profit and loss account debit side. Traveling expenses. Yes, profit and loss account debit side. Next, discount. Profit and loss account debit side. Sales return. Manufacturing credit कैसे आएगा? शिवांगी. Less from sales. Sales return, less from sales. Advertisement. P&L debit. सही है. Sales. Today account credit side. Capital. Balance sheet, liability side. Drawings तो किधर आया ये रे? Drawings कहाँ दिया उधर जिनल? Okay, capital में drawing मैंने होता है. Okay, capital, balance sheet, liability side. Sundry creditors, liability.
sundry debtors assets, डिस्काउंट, डिस्काउंट जरा देख के बोलना, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिए, यस क्रेडिट साइड में दिए तो पीएनएल क्रेडिट, डिस्काउंट पीएनएल क्रेडिट, डिस्काउंट पीएनएल क्रेडिट, miscellaneous expenses, yes profit and loss account debit side, bills payable liability, bills receivable asset, corporation means bank balance, corporate bank means bank balance, assets, cash on hand अगेंस्ट assets. तो ट्रायल बेंच बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नया नहीं था, जो भी पढ़ाया मैंने वही है, कुछ भी नया नहीं है. ओके नाउ सी, इसके बाद आगे पढ़ते एडजस्टमेंट्स. नाउ एडजस्टमेंट तुम लोग को बताने का है. ओके फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोलो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल व्हाट इज द इफेक्ट. कोई भी क्लोजिंग स्टॉक हो, बैलेंस शीट एसेट साइड, फिर दूसरा इफेक्ट यस रॉ मटेरियल, सबका फर्स्ट इफेक्ट कहां पे आएगा, कोई भी स्टॉक हो बैलेंस शीट एसेट साइड पे आएगा. ओके बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम, सही है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी बताओ कहां पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. पृथ्वी ये क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग नहीं है. ओके जिनका आंसर राइट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. तो यू कीप इन माइंड closing stock of raw material consume, closing stock of WIP manufacturing credit, and closing stock of finished goods trading account credit side. बहुत सिंपल था. फैक्ट्री टैक्सेस prepaid ₹2000, बोलो what are the two effects, less from prepaid means minus, तो लेस फ्रॉम कहां से माइनस करोगे, less from expense means less from taxes and balance sheet asset side, less from taxes and balance sheet asset side. ठीक है चलो गुड. डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, ट्रेडमार्क एंड बिल्डिंग. ओके तो बोलो कहां पे आएगा डेप्रिशिएशन. ओके जल्दी बताओ कौन बताएगा. डेप्रिशिएशन फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेप्रिशिएशन प्लांट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है हाँ. डेप्रिशिएशन ऑन ट्रेडमार्क, डेप्रिशिएशन ट्रेडमार्क कहां पे आएगा जल्दी बताओ, ट्रेडमार्क. ओके अमाउंट डेप्रिशिएशन ऑन ट्रेडमार्क. ओके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके ट्रेडमार्क हम लोग को सेल के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रेडमार्क यूज नहीं होता है. डेप्रिशिएशन बिल्डिंग अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड क्यों, अरे बिल्डिंग है, क्वेश्चन में बोला है कि फैक्ट्री बिल्डिंग, क्वेश्चन बोला है कि फैक्ट्री बिल्डिंग, चेक करो. ओके सिर्फ बिल्डिंग बोला है, इट इज नॉट सेड फैक्ट्री बिल्डिंग. अगर फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं बोला है, ओके अगर फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं बोला है तो वो फैक्ट्री यूज नहीं हो रहा है, इट इज यूज इन ऑफिस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके तो कंक्लूजन व्हाट, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर P&L डेबिट, depreciation on trademark P&L debit, depreciation building P&L debit, and depreciation on plant and machinery manufacturing account debit side. तो सम काफी इजी है. प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2004 and balance sheet as on 31st March 2004. तो सम काफी इजी है. तो लेट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ओके तो चेक करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 2,50,000.
तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,50,000, ठीक है, 2,50,000। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, वो भी कहाँ पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है, चेक करो ओपनिंग WIP 80,000, कितना आएगा 80,000, तो यहाँ पे 80,000। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सर कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लेट अस चेक द अमाउंट 2,20,000 तो 2,20,000 ये होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक क्लियर। नाउ परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सर परचेज अगेन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कैरेज इनवर्ड, दोनों कहाँ पे आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो परचेज ये ऊपर आना चाहिए, ओके। तो परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स हाउ मच, लेट अस चेक 2,15,000 एंड कैरेज इनवर्ड इज हाउ मच 2,500, यहाँ पे आएगा 2,15,000 कैरेज इनवर्ड 2,500, ओके। तो चलो फटाफट ऐड करते हैं इसको, टोटल इज 4,67,500। सर इसमें से क्या माइनस करोगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जब एडजस्टमेंट आएगा तब कर लेंगे, ये हम लोग का हो गया, ओके। नाउ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड ट्रेडमार्क, बैलेंस शीट असेट साइड, सब पे डेप्रिसिएशन है, सब पे डेप्रिसिएशन, चारों पे डेप्रिसिएशन है, ओके। तो लेट अस राइट बिल्डिंग, okay, building is how much, building is 1,50,000, इनर कॉलम में आएगा, तो बिल्डिंग, ओके। बिल्डिंग के बाद क्या आएगा, प्लांट मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000, 3,60,000, तो दिस वाज माय प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर इज 40,000, फर्नीचर 40,000, तो इस पे भी डेफिनेशन है। आफ्टर फर्नीचर क्या दिया, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क इज हाउ मच, ट्रेडमार्क इज 30,000, 30,000, ओके 30,000, तो ये हो गया, ओके। तो बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एंड ट्रेडमार्क ऑल फिनिश्ड। वेजेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड तो आएगा टू वेजेस, हाउ मच 83,000, तो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। वेजेस के बाद क्या दिए, फैक्ट्री टैक्सेस, इस पे एडजस्टमेंट है, फैक्ट्री टैक्सेस कितना दिया है चेक कर लेते, तो फैक्ट्री इज 4,000, अगेन इस पे एडजस्टमेंट है प्रीपेड वाला, तो 4,000, ओके। आफ्टर दैट मोटिव पावर, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, यहाँ पे आएगा टू मोटिव पावर, तो मोटिव पावर इज हाउ मच, मोटिव पावर कितना दिया है 9,000, 14 पावर 9,000 टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस हाउ मच 5,000, अगेन आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट्स, ये भी हो गया। आफ्टर दैट
salary to office staff and office rent. Again, profit and loss account debit side. 2, office staff salaries. Again, no adjustment. So office staff salaries, then 11,000. Next, 2, office rent. Office rent is how much? 10,500. फिर कैरेज इनवर्ड हमने ऑलरेडी ले ली है. ओके, नाउ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैंक चार्जेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट. अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो 2, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. Printing and stationery is 5,200. फिर 2, बैंक चार्जेस. 2,500. फिर 2, ट्रैवल एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना? ट्रैवल एक्सपेंसेस 10,000. 2, डिस्काउंट अलाउड. डेबिट में दिया है तो डिस्काउंट अलाउड है. डिस्काउंट अलाउड कितना है? डिस्काउंट अलाउड 3,300. डिस्काउंट. उसके बाद क्या दिए चेक करते हैं. सेल्स रिटर्न, तो क्या करोगे? लेस फ्रॉम सेल्स. तो इधर आएगा बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न. ओके, सेल्स रिटर्न. कितना है सेल्स रिटर्न? 11,000. आएगा 11,000. एडवर्टाइजमेंट 5,500. कोई एडजस्टमेंट नहीं. To advertisement is how much? 5,500. okay, advertisement के बाद sales trading account right side 7,80,000. sales trading account right side 7,80,000. 7,80,000 minus 11,000, 7,69,000. okay, next capital, balance sheet liability side. Creditors, balance sheet liability side. तो capital is how much? 8,50,000. फिर क्या दिया है? sundry creditors कितना है? 52,000. नो एडजस्टमेंट, 52,000. फिर इसके बाद डिस्काउंट. तो डिस्काउंट इज गिवन क्रेडिट साइड. डिस्काउंट कहाँ पे दिया है? सॉरी, सन्ड्री डेटर्स 8,500. फिर आएगा सन्ड्री डेटर्स 82,500. डेटर्स पे सॉरी एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे आएगा नो एडजस्टमेंट ऑन डेटर्स. तो इधर कॉलम नहीं आएगा, आउटर कॉलम में आएगा. डेटर्स या डिस्काउंट. ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. बाय डिस्काउंट रिसीव्ड. कितना डिस्काउंट रिसीव्ड? अमाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड 2,500 दिया है. क्वेश्चन में चेक कर लो, इट्स 2,500. मिसलेनियस एक्सपेंसेस P&L डेबिट टू MISC मिसलेनियस
एक्सपेंसेस कितना मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5500 next is bills payable liability and bills payable asset bills receivable asset तो आएगा bills payable 34,000 and next is bills receivable क्या है बिल्स रिसीवेबल असेट है तो कितना है बिल्स रिसीवेबल 16,000 नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन बैंक इज असेट कॉर्पोरेशन बैंक इज असेट 98,000 नेक्स्ट कैश इन हैंड कैश ऑन हैंड असेट है देख लो इधर कॉर्पोरेशन बैंक 98 एंड कैश ऑन हैंड असेट 9,000 ठीक है नाउ नेक्स्ट है इसके बाद नाउ पोस्टिंग इज ओवर पोस्टिंग डाउट है तो पूछो now adjustment number 1 closing stock of raw material consumed WIP manufacturing credit and finished goods trading account credit side second effect सबका बैलेंस शीट असेट साइड तो पहले हम लोग सेकंड इफेक्ट पहले देंगे ओके इसमें 2-3 लाइन ऐड करना पड़ेगा हम लोग ओके तो फर्स्ट यहां से कॉपी कर लेते लास्ट क्वेश्चन में से कॉपी कर लेते हम लोग ओके तो क्लोजिंग स्टॉक of raw material 85,000 closing stock of WIP 30,000 and closing stock of finished goods is 2,05,000 तीनों को ऐड कर दो कितना आता है चलो फटाफट यूज और कैलसीज और ऐड करो व्हाट इज अमाउंट ओके चलो फटाफट 3,20,000 तो यहाँ पे आएगा 3,20,000 ओके तो ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑलवेज लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम चलो फटाफट माइनस करो और अमाउंट बता कितना आता है कम ऑन टेल मी व्हाट इज द अमाउंट तो क्लोजिंग चेक करो आंसर राइट यस 3,82,500 कैल्सी यूज किया करो ओके तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट 30,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 2,05,000 तो ये भी हम लोग का काम खत्म हो गया तो फर्स्ट एडजस्टमेंट ओवर क्लोजिंग स्टॉक वाला अब फैक्ट्री टैक्सेस वेरी प्रीपेड 2,000 प्रीपेड मींस माइनस तो लेस फ्रॉम फैक्ट्री टैक्सेस ओके लेस प्रीपेड टैक्सेस तो कितना अमाउंट है 2,000 2,000 1 रुपए का आई 2,000 का 2,000 सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड प्रीपेड क्या आएगा प्रीपेड फैक्ट्री टैक्सेस प्रीपेड फैक्ट्री टैक्सेस कितना है 2,000 ओके ये भी हम लोग का हो गया नाउ डेप्रिसिएशन तुम लोग जरा परसेंटेज में वो बराबर से बताना राइट फर्नीचर प्लांटरी ट्रेडमार्क एंड बिल्डिंग ओके तो द बिल्डिंग पे कितना परसेंट है कम ऑन टेल मी फास्ट लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट बिल्डिंग पे परसेंटेज हम लोग का इट्स 5% कम ऑन कैलकुलेट 5% ओके सही जवाब तो बिल्डिंग पे
5% है, और 5% कितना आ रहा है, हाउ मच 5%, 1,50,7,500 माइनस कर दो, 1,50,000 माइनस 7,500, 1,42,500. Okay. Now depreciation on plant and machinery कितना परसेंटेज है, प्लांट एंड मशीनरी, यस सही जवाब, कितना परसेंट, 15%. कम ऑन कैलकुलेट 15%, हाउ मच, 3,60,000 पे 15% कितना आ रहा है, 15%, 54,000. ओके, तो 54,000 जरा आएगा 3,06,000. फर्नीचर लेस depreciation at the rate depreciation कितना परसेंट है, depreciation at the rate कितना परसेंट हम लोग का फर्नीचर पे, इस 10%, 10% कितना आएगा 4,000, पूरे 4,000, यहाँ पे आएगा 36,000. कैलकुलेट ऑन ट्रेडमार्क, कितना ट्रेडमार्क पे चेक करो, डेप्रिसिएशन ट्रेडमार्क इज 20%, कैलकुलेट 20%, तो इट्स कम्स टू 6,000, तो 30 minus 6, 24,000. Okay, now this out of this 4, building, plant machinery, furniture and trademark, depreciation on furniture will be debited, sorry, plant machinery will be debited to manufacturing account, so I got 2. Depreciation on plant and machinery, depreciation plant and machinery कितना है 54,000, और बाकी सब पे कहाँ पे आएगा, P&L में आएगा. ओके, डेप्रिशिएशन ऑन, ठीक है, बोलो डेप्रिशिएशन में पहले फर्नीचर, प्लांट एंड सॉरी फर्नीचर ट्रेडमार्क, बिल्डिंग एंड बिल्डिंग, तो फर्नीचर पे कितना है, फर्नीचर पे 4,000, ऑन फर्नीचर 4,000, ट्रेडमार्क 6,000, बिल्डिंग हाउ मच, बिल्डिंग पे कितना परसेंट है, बिल्डिंग 7,500. चलो फटाफट ऐड करो, तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है ऐड करके तीनों को, तो 6 plus 4 10, 10 plus 7,500, it's come to 17,500. Okay, so this all adjustment also over. Now calculate क्या आएगा, कॉस्ट प्रोडक्शन. चलो फटाफट निकालो कॉस्ट प्रोडक्शन, ये डिफरेंस होगा, कैलकुलेट कॉस्ट प्रोडक्शन. आज मैं नहीं करूंगा, आज तुम लोग ये आंसर बताओगे. चलो फटाफट ये सब ऐड करो. ओके, उसमें से ये 30 माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा सर, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स. कम ऑन फास्ट, सब लोग कैलसी यूज करो और आंसर बताओ. कॉमन यूजर कैसी, डेबिट माइनस ट्रेड, देखते किसका कैलसी का स्पीड अच्छा है. 5,85,500. लेट मी चेक.
6,15,500 है, 6,15,500 है। ओके, तो 6,15,500 माइनस 30,000। ओके, ये आंसर बताया क्या साक्षी ने? ओके ठीक है, तो राइट आंसर राइट है। तो कितना आएगा? 5,85,500। यस राइट। ओके, इस चेक कर लेते। 6,15,000। Now this cost of producing finished goods will be transferred to which account? इधर आएगा बाय ट्रेडिंग, इधर क्रेडिट, इधर क्या डेबिट। It comes to 5,85,500. Okay. Now you can calculate gross profit. Now credit से how much? Credit से कितना है? 9,74,000. Okay. And debit side how much? 2,20 plus 5,85. कितना है? 8,05,500. तो चलो 9,74,000 minus 8,05,500 कितना आता है बताओ? What is amount of GP? Come on fast. Use your calci. Fat. Okay. 9,74,000 minus 8,05,500. Okay. 1,68,500. Okay. चेक करता हूँ, इधर आएगा 1,68,500. ओके यस सही जवाब। बैलेंस भी करें, इसको ग्रीन कर देते हैं ना। ग्रॉस प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। 1,68,500. ओके चलो इधर आएगा 1,71,000. ओके और इधर भी 1,71,000 सेम है टोटल। ओके कैसे पॉसिबल है सेम आने का आंसर? ओके सेम नहीं, सॉरी इधर 1,71,000 है, इधर ओनली 71 है। तो बता व्हाट इज नेट प्रॉफिट? बहुत सिंपल है, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है कितना आएगा? ₹1,00,000। ये हो गया। नाउ दिस नेट प्रॉफिट विल बी एडेड। इसमें ड्राइंग्स है ही नहीं, तो ड्राइंग्स को मारो गोली। ओके नेट प्रॉफिट कितना है? 1,00,000। ओके तो इतना रहेगा 9,50,000। ओके लेट अस चेक कि बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बैलेंस शीट टैलीज बोथ सलेंसरीज 10,36,000 एंड 10,36,000। तो ये हो गया सम सॉल्व। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। सम वाज वेरी इजी।